الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز علماء کرام، عزیز طلبہ اور دیگر سامعین، یہ سالانہ انجمن کی چوتھی نشست تھی جو بزبان اردو منعقد ہوئی اور جس میں شعبہ وسطیٰ کے طلباء یعنی جماعت ثالثہ سے لے کر کے خامسہ تک کے بچوں نے خطاب فرمایا اور دو اہم موضوع پر اپنی باتیں رکھی۔ پہلا موضوع تھا نشہ آور اشیاء کی حرمت اور دوسرا موضوع موبائل کے مثبت و منفی پہلو۔ تمام بچوں نے تیاری کر کے اور اس کے بعد میں پھر یہاں آ کر کے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ سالانہ انجمن یہ پورے سال چلنے والی ہفتہ واری انجمن کی نچوڑ ہوتی ہے اور اس کا خلاصہ ہوتی ہے۔ یہاں پر وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے یا اسی بچے کو حصہ لینے کی ہمت اور جرأت ہوتی ہے جو پورے سال انجمنوں کے اندر شریک ہو کر کے تقریریں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور محنت کر کے اس کے اندر حصہ لینے کی تگودو کرتا ہے، اور جو بچے ہفتہ واری انجمن میں پیچھے رہتے ہیں اور تقریر کرنے سے جی چراتے ہیں، انہیں یہاں موقع بھی نہیں ملتا ہے اور نہ ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہوتی ہے کہ وہ آ کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ از ابتدا تا انتہا میں نے سارے بچوں کی باتیں سنی اور اس کو سننے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہمارے طلباء اور ہمارے بچے دل جمعی کے ساتھ محنت کریں، لگن کے ساتھ تیاری کریں تو وہ انشاءاللہ ہر میدان کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن خامی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی کہ ہم اس کے لیے تگودو نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر خطابت کے میدان میں ہمارے بچے اس طریقے سے بیانات کر سکتے ہیں تو اور دیگر میدان میں بھی وہ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن بشرط محنت۔ جب آپ محنت کریں گے تب ایسی صورت میں پھر آپ کو ہر میدان کے اندر کامیابی ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خطابت کا سلسلہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے اور پھر دعوت و تبلیغ کے میدان میں آنا اور لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھنا یہ بڑی محنت چاہتا ہے، بڑی تگودو چاہتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر جب ہم محنت کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تب جا کر کے ہم اس کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جو یعنی مضامین کی تیاری ہے کہیں کہیں کچھ خامیاں بھی نظر آئیں، جیسے الفاظ کی ادائیگی میں، زیر اور زبر کی ادائیگی میں، اور اسی طریقے سے بعض طلبہ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جملے میں یا ایک سانس میں کئی جملے بول جائیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نہیں میرے عزیز بچوں، کامیابی یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملے رک رک کر کے بولیں اور اس طرح بولیں کہ سننے والے کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، اس کے دماغ کے اندر وہ بات بیٹھ جائے۔ اگر ہم ایک سانس میں کئی باتیں کہتے ہوئے چلے جائیں اور اس کے بعد میں پھر سننے والے کے دماغ میں وہ بات نہ آ سکے تو پھر وہ ہماری بات رائے گا جائے گی اور اس کے بعد میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے
अल्फाज हैं, जुमले हैं और नुसूस की को याद करना बहुत ही लाजमी चीज़ है। जैसे बहुत सारे बच्चे, एक बच्चे ने कहा करीहा, करीहा, करीह है वो। इसी तरीके से कहा अल खुम्र, खम्र है, उसकी कहा खिमार, इसी से आती है, खुमार आती है जो लफ्ज़ खिमार है। इसी तरीके से छोटे छोटे अल्फाज ऐसे हैं और बात अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमारे तलबा जो है गौर नहीं कर पाए और उसके बाद में फिर उसको आकर के यहाँ पर उन्होंने गलत बोल दिया। तो अल्फाज और जुमलों की तस्सीर, नुसूस को अच्छे तरीके से याद करके आना। आप कितने भी बड़े खतीब हों, लेकिन आपको नुसूस अच्छे तरीके से याद नहीं है तो आज की जो जनरेशन है या इस तरीके से आज के जो अफराद हैं आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको नुसूस याद है, कुरानी आयात है, अहादीस हैं और इसी तरीके से और दीगर चीज़ें हैं और आप उनकी अदायगी में अच्छे तरीके से, उनकी अदायगी अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में फिर आप कामयाब खतीब माने जाएंगे जो है। और इसी तरीके से मैंने देखा कि अपने बच्चों को दोनों मौजू के ऊपर बातें की, लेकिन अक्सरियत नशावर चीज़ों के बारे में थी जो है। आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें, नशावर चीज़ें, अशिया और इस तरीके से मोबाइल, इसके यानी नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। हमारे बच्चों ने क्या किया है कि फ़ायदे को ज़्यादा वाज़ेह करने की कोशिश की, मोबाइल के ख़ास तौर से जो है ना, वो उसके जो मनफी यानी है पहलू है उसके ऊपर रोशनी बहुत कम डाली है। जबकि अगर आप उसकी तह में जाएंगे और देखेंगे तो ऐसी सूरत में फिर आपके उसके जो नुकसानात है ना, आपके होश उड़ा देंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान आप, हम खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वक्त कहाँ पे ज़ाय होता है, मोबाइल के इस्तेमाल में, और जिसकी वजह यह है कि हम क्लास में हाजिर नहीं होते हैं, जिसकी वजह यह है कि हमें क्लास में नींद आती है, जिसकी वजह यह है कि हम सबक याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह यह है कि हम तकरीर याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यह है कि हम सबक सुना नहीं पाते। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं और बिल्कुल वाज़ेह किताब की तरह ये चीज़ मौजूद है। तो इस चीज़ को भी यानी सामने रखने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात वो ये कि जिस बात को हम लोगों के सामने जिक्र कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, सबसे पहले उसके ऊपर अमल करने। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मनशियात के आदी हैं, मैं जानता हूँ, हमारे असाज़ा जानते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ये बड़ी अहम चीज़ है, एक यानी खतीब के लिए और एक अच्छे मुक़र्रिर के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर कोई इंसान इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है और समाज और मुआशरे के सामने अपने आप को पेश करता है, आपकी बातें पब्लिक तो सुन लेगी, आवाम सुन लेगी, लेकिन उसका उसके दिल के ऊपर और उसके दिमाग के ऊपर जो असर होना चाहिए वो असर नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि उस बुराई के अंदर हम खुद मुलव्वस हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले इससे आज़ाद करने की कोशिश करें और उसके बाद में जो भी बात कहें सबसे पहले उसके ऊपर अमल करें, फिर लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका फराहम किया है। वक्त काफ़ी हो चला है, बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं अपने तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मेहनत की और उसके बाद में फिर अब नंबर आना ना आना तो इनकी किस्मत की बात है। हमारे हकम हज़रात मौजूद थे और उन्होंने अपने सवाबदीद के मुताबिक नंबर दिए हैं। इंशाअल्लाह जिसकी तकरीर उनको पसंद आई होगी वो कामयाब होंगे, उनका पहला दूसरा नंबर भी आएगा। और इसी तरीके से जो नहीं कामयाब हुए, जो पीछे रह गए, उनके लिए लाजिम है कि आइंदा उसके लिए वो मेहनत करने की कोशिश करें ताकि उनका नंबर भी आ सके और जो नंबर जिनका आया वो उज्ब का शिकार ना हो कि हमने तीर मार लिया है ना। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला में ज़्यादा कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।